Hello, NEET aspirants. How are you doing? Preparing well for your coming exam? So, today in NCERT Daily Revision Series, we are discussing anatomy of plants. So, let's start. Apical meristem, the simplest type of tissue which is having similar type of cells with common origin. टिश्यू की डेफिनेशन अगर आपको पता हो तो सिमिलर और डिसिमिलर सेल का ग्रुप है बट ओरिजिन सेम होता है and they perform a common function. So depending upon their origin, they are of two types, meristematic tissue and permanent tissue, if they are capable of dividing or not. So meristematic tissue, ग्रोथ जो है प्लांट में वो कुछ स्पेशलाइज रीजन तक ही रेस्ट्रिक्टेड होती है and those regions are known as meristems. So meristem which occur in different regions is divided into three main types. The first one is known as apical meristem, which is present at the tip of root or stem. So root apical meristem and shoot apical meristem. This is NCERT diagram. In root apical meristem, root cap is present, which helps to penetrate inside the soil. But in aquatic plants, these root caps are replaced by root pockets. So the basic or major difference between root cap and root pocket is root cap can regenerate, but root pockets cannot regenerate. Right? So this is initial group of cells, cortical region, and this is the central cylinder. This is internal diagram showing root apical meristem cells where root cap is clearly visible, as you can see here. While in case of shoot apical, it is restricted to stem region. Intercalary meristem, which is found in between apical and lateral meristem, that is known as intercalary meristem. It is present between internodes, or we can say it represents zone of elongation in monocot stem. Intercalary meristem is mainly responsible for increasing length of the plant. एपिकल मेरिस्टम में एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, सेल्स का नंबर बढ़ता है, यहाँ पे सेल की लेंथ बढ़ती है. इंटरकैलरी मेरिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द सेल्स. एंड थर्ड वन इज lateral meristem. It is secondary in origin. It is found in mature regions of root and stem. Found in gymnosperm and dicots only. In dicots, secondary growth is found. So it is present over there. And in vascular cambium, in the form of intra and intrafascicular cambium, it is present. In cork, it is present in the form of cork cambium. So आप याद रखें, apical and intercalary, they are primary meristems, while lateral meristem is secondary meristem. Now we move to permanent tissue. They lose the power of division. So cells are similar in structure and function. It forms simple tissue or simple permanent tissue. But if there are more than one type of cells, then it is known as complex tissue. So simple and complex permanent tissue. Simple permanent tissue में सबसे पहला आता है parenchyma tissue. Parenchyma, all cells are isodiametric, as you can see here. They can be spherical, oval, rounded or polygonal, thin walled, and cells are formed of cellulose.
So cellulosic cell or cellulosic cell wall is present. Due to their compactness, very less or no intracellular space is found. Parenchyma cells are mainly responsible for photosynthesis, storage and secretion. Cells are thin-walled, cellulosic, compactly arranged and helps in photosynthesis, storage and secretion. Second type of simple permanent tissue is collenchyma. Collenchyma cells are living and variously shaped, but they are thick at corners, found in chloroplasts and below epidermis of dicots. They have to provide mechanical strength and flexibility to the growing parts of the plant. Sclerenchyma, dead cells. याद रखें, parenchyma and collenchyma are living cells, but sclerenchyma is group of dead cells. It provides rigidity, mechanical strength, and it have deposition of lignin. So cell wall contains lignin. Two type of cells are found in sclerenchyma: sclerids, which are known as stone cells, and fibers. Fibers are elongated, while stone cells are spherical. Stone cells have narrow lumen as compared to fibers. Stone cells are found singly, while fibers are present in group. If we discuss their location, stone cells are in shell of nuts, pulp of fruit, tea leaves, while fibers are present in vascular bundle, xylem phloem, cortex and pericycle. So these are two types of cells which are found in sclerenchyma. These are sclerids and fibers. As you can see here, narrow lumen in case of sclerids and wide lumen in case of fibers. Right? This is as per NCERT. Let's move further. These are fiber sclerid. Another view. This is cross section having primary wall, secondary wall, and a very narrow lumen. Now complex tissue or complex permanent tissue. It is made up of more than one type of cell, as you know, and xylem and phloem, which are known as vascular bundles or trachea elements. Vascular bundles or trachea elements और कंडक्टिंग टिश्यूज. जाइलम फ्लोएम के लिए हम तीन वर्ड यूज कर सकते हैं. वेस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं उनको, ट्रैक्री एलिमेंट्स भी कहते हैं और कंडक्टिव टिश्यू भी कहते हैं. सो जाइलम इज अ मेन कंडक्टिव टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल आयंस. तो रूट से स्टेम की तरफ जो जाएगा दैट इज जाइलम. तो यहाँ पे चार मेन टाइप की स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं. एज यू कैन सी हियर, ट्रैकिड्स, they are elongated but close at both the ends. Pits are present here. They are tube like structures. Lignified cell walls हैं यहाँ पे. But vessels are open at both ends, so they are arranged end to end and forms a continuous column throughout the length of the plant and help in transport of water and minerals. In flowering plants, tracheids and vessels are main water transporting elements. So major difference ट्रैकेड और वेसल में क्या हो गया? ट्रैकेड क्लोज है दोनों एंड्स पे, टेपरिंग एंड्स हैं. वेसल्स में ओपन एंड्स है, लिग्निफाइड सेल वॉल्स है. Along with trachid and vessels, xylem fiber and xylem parenchyma are also present. Xylem fibers and
xylem parenchyma. Xylem fiber, again thickened walls and central area is lumen. They can be having septa or without septa, so septate or aseptate. Xylem parenchyma are living cells. याद रखें आप ये. Xylem parenchyma is living here, and their cell wall is again formed of cellulose. Xylem parenchyma help in food storage. Xylem parenchyma का function क्या है? Food storage में help करता है, and storage in the form of starch or fat, along with tannins. अब यहाँ पे जो वाटर का कंडक्शन होगा वो स्पेशल रे पैरेनकाइमा की हेल्प से होता है. रे पैरेनकाइमा सेल जो है यहाँ पे वाटर के कंडक्शन में हेल्प करती है. प्राइमरी जाइलम को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम. जो सबसे पहले बनेगा वो प्रोटोजाइलम, और जो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बनता है वो मेटाजाइलम. अब स्टेम में जो प्रोटोजाइलम है वो पेरिफेरी पे है, और जो मेटाजाइलम है वो सेंटर में है. सो इट इज नोन एज एंडार्क. प्राइमरी जाइलम इज एंडार्क, while in roots protoxylem is towards periphery and metaxylem is towards center. तो वो कैसी कंडीशन होगी? एक्सार्क. तो एंडार्क एंड एक्सार्क दो कंडीशन हमें ध्यान रखनी. सो वाटर मिनरल के कंडक्शन के लिए जाइलम. नाउ फॉर कंडक्शन ऑफ फूड वी हैव अनदर कंडक्टिंग टिश्यू दैट इज फ्लोएम. तो लीव में जो फूड सिंथेसाइज होगा वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम प्रेजेंट होता है. तो फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ sieve tube, companion cells, phloem fiber and phloem parenchyma. phloem parenchyma को हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं. So these are sieve tube elements. मेजर डिफरेंस कहां पे आता है? जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें sieve tube और कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है. दे हैव एल्ब्यूमिनस सेल एंड sieve cells. कंपेनियन सेल्स स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं. तो जो ये दोनों sieve tube जो एलिमेंट्स हैं दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ sieve plates. कंपेनियन सेल का फंक्शन मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट इन द sieve tube. जो इनकमिंग फूड है उसकी वजह से जो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है. जबकि जो फ्लोएम पैरेनकाइमा है वो सिलेंड्रिकल सेल्स हैं विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लिएटेड. यहाँ पे भी सेल वॉल में सेलुलोज होगा, एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मोडेस्माटा. दो सेल्स के बीच में ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है जो कंडक्शन में हेल्प करेगा, फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. लेकिन मोनोकोट्स में फ्लोएम पैरेनकाइमा इज नॉट फाउंड. फ्लोएम फाइबर मैंने अभी आपको बताया, बास्ट फाइबर भी कहते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस है. जबकि कंपेनियन सेल कैसी थी? पैरेनकाइमेटस. ये स्क्लेरेनकाइमेटस है. फ्लोएम फाइबर थिक वॉल्ड है, वो थिन वॉल्ड था. जैसे ही मैच्योर होते हैं ये फाइबर्स, वो उनका प्रोटोप्लाज्म लूज हो जाता है. दे लूज देयर प्रोटोप्लाज्म. एंड कॉमन एग्जांपल आप देखें फ्लोएम फाइबर के जूट, फ्लैक्स, हेम्प, जिनको हम कमर्शियली भी यूज करते हैं. अब यहाँ पे भी जो पहले बनेगा फ्लोएम वो प्राइमरी फ्लोएम, जो बाद में बनेगा वो सेकेंडरी फ्लोएम. तो प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम. प्रोटोफ्लोएम large sieve tubes, metafloem smaller sieve tubes. Now
In plants, three type of tissue systems are found: epidermal tissue system, ground tissue system, and vascular tissue system. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो आउटरमोस्ट कवरिंग है पूरे प्लांट बॉडी की, कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं, पूरे प्लांट बॉडी की जो आउटरमोस्ट कवरिंग है उससे जो टिश्यू बनता है दैट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. इसमें एपिडर्मल सेल्स के साथ साथ स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडिसेस. Epidermal appendages are present in the form of trichome, hairs, spines, etc. So ये सारी स्ट्रक्चर मिलके एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाते हैं. सो एपिडर्मिस आउटरमोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर होती है, यहां से एपिडर्मल अपेंडिसेस अराइज होती हैं, पेरेन्काइमेटस हैं, फोटोसिंथेटिक हो सकती है, और इनके ऊपर एक और लेयर होती है विच इज नोन एज क्यूटिकल, जो ट्रांसपिरेशन रेट को कंट्रोल करने में हेल्प करती है. लेकिन अगर हम रूट एपिडर्मिस की बात करेंगे तो रूट एपिडर्मिस में क्यूटिकल एब्सेंट होगा. इन रूट एपिडर्मिस क्यूटिकल इज एब्सेंट. एंड These are the stomata. Stomata भी दो टाइप के होते हैं. They can be bean shaped most of the time, लेकिन grasses में dumbbell shaped. This type of stomata are found. Dumbbell shaped. मेन दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं स्टोमेटा. गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं एंड रेगुलेट ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल में. जब सफिशिएंट वाटर प्रेजेंट होगा तो गार्ड सेल स्वेल अप हो जाएंगी, स्टोमेटल अपैरेटस का साइज बढ़ जाता है एंड देयर इज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. बट व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, सब जो गार्ड सेल्स हैं वो श्रिंक करना शुरू हो जाएंगी एंड इट कॉजेज क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. This is NCERT diagram again. So there is one structure, stomatal apparatus. ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखें आप. stomatal apparatus क्या होता है? स्टोमेटा स्टोमेटा की गार्ड सेल्स प्लस स्टोमेटल अपर्चर और जो सराउंडिंग सेल्स हैं जिनको हम सब्सिडरी सेल्स कहते हैं, ये मिलके क्या कहलाता है? स्टोमेटल apparatus. तो ये सब्सिडरी सेल्स हैं, ये गार्ड सेल्स हैं, दिस इज स्टोमेटल apparatus. तो ये तीनों दिस इज स्टोमेटल पोर. ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके स्टोमेटल apparatus बनाते हैं. Again, details regarding stomatal apparatus: open and closed stomata. Same things, thick inner walls and thin outer walls. Now epidermal appendages की मैं बात कर रहा था आपको कि रूट्स में रूट हेयर्स के फॉर्म में हो जाएगा, स्टेम में ट्राइकोम्स के फॉर्म में हो जाएगा. रूट हेयर्स सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, राइट. जबकि स्टेम में ये सिक्रेटरी होते हैं फंक्शन. रूट हेयर्स नॉर्मली यूनिसेलुलर है, जो स्टेम हेयर्स हैं ट्राइकोम्स हैं, दे आर मल्टीसेलुलर. रूट हेयर्स ब्रांच्ड होते हैं, स्टेम हेयर्स और ट्राइकोम्स कैन बी ब्रांच्ड और इनब्रांच्ड. मेनली दे प्रिवेंट वाटर लॉस. जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का लॉस होता है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं. नाउ सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम.
यहाँ पे पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा तीनों टाइप की सेल्स होंगी। तो एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल्स, एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ के जो भी सारा पार्ट है दैट फॉर्म ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसमें आप कोर्टेक्स, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, पिथ, मेड्यूलरी रेस, ये सारी स्ट्रक्चर्स आ जाती है। ये सारा सिस्टम मिलकर क्या कहलाता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। पेरेन्काइमा सेल्स कहाँ का प्रेजेंट है? इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान से देखें। कोर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ एंड मेड्यूलरी रेस, CPPM, कोर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ एंड मेड्यूलरी रेस में पेरेन्काइमा प्रेजेंट है। और उसके अलावा प्राइमरी स्टेम और रूट्स में, लीव्स में स्पेशलाइज्ड मीजोफिल टिश्यू होता है। मीजोफिल टिश्यू में फिर पैलिसेड एंड स्पंजी पेरेन्काइमा, पैलिसेड पेरेन्काइमा एंड स्पंजी पेरेन्काइमा, पैलिसेड टिश्यू एंड स्पंजी पेरेन्काइमा इज फाउंड। नाउ थर्ड वन इज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। कंडक्टिंग टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम से मिलके बनता है, इसलिए इनको वेस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं। अब अगर कैम्बियम है तो वो ओपन टाइप, सॉरी क्लोज टाइप, और अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो ओपन टाइप के वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। ओपन टाइप कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे प्रेजेंट होंगे, मेनली बाउंड इन डाइकोट स्टेम। अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो क्लोज टाइप, सो नो सेकेंडरी ग्रोथ। So as you can see, this is cambium in monocots. Cambium absent, closed vascular bundle. Now, based on arrangement of the xylem and phloem, ये रेडियल और कंजॉइंट फर्दर दो टाइप के होते हैं। रेडियल की xylem and phloem अल्टरनेट विद ईच अदर, बट उनके रेडियस दोनों के अलग अलग होते हैं। एक्सक्लूसिव एग्जांपल है रूट्स। रूट्स में रेडियल वेस्कुलर बंडल्स मिलते हैं, बिना सोचे समझे आप अगर रेडियल वेस्कुलर बंडल्स आ जाए आप रूट्स कर देना। कंजॉइंट, इसमें फिर वही दो कंडीशन हो जाएंगी कि कैम्बियम प्रेजेंट है कि नहीं है, या जाइलम बाहर की तरफ है या जाइलम अंदर की तरफ है। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों सेम रेडियस पे हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे डिफरेंट रेडियस था, यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑन सेम रेडियस। यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है तो कंजॉइंट ओपन हो गया, यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट है तो कंजॉइंट क्लोज्ड हो गया। तो रूट्स के अलावा स्टेम और लीव्स में कंजॉइंट टाइप के वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलेंगे आपको। नाउ मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स की अगर हम एनाटॉमी को स्टडी करें, एंड स्टार्ट विद डाइकोट रूट। दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन showing all the part of dicot root starting from epidermis. एपिडर्मिस में रूट हेयर्स, एपिडर्मल अपेंडेजेस अभी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद ये पूरा कोर्टिकल रीजन हो गया जिसमें सारी की सारी सेल ऑलमोस्ट सेम टाइप की होती है। वन बाय वन विल डिस्कस इट। एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के बाद का पूरा एरिया जिसमें पेरिसाइकिल आ गया, वेस्कुलर बंडल्स आ गए, पिथ आ गया, वो सारा क्या कहलाएगा? स्टील कहलाता है। सो डाइकोट रूट में सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, इससे यूनिसेलुलर रूट हेयर अराइज हो जाते हैं। अभी मैंने बताया था रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं, ट्राइकोम्स मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, फॉलोड बाय मल्टीलेयर्ड कोर्टेक्स। सारी की सारी सेल्स मैंने बताया एक जैसी हैं, पेरेन्काइमेटस है, and intracellular spaces are present. थर्ड पार्ट एंडोडर्मिस, कोर्टेक्स की जो इनरमोस्ट लेयर है दैट इज नोन एज एंडोडर्मिस।
अब यहाँ पे सुबेरेन की डिपोजिशन होती है जिसकी वजह से कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बन जाती हैं। तो दो टाइप का पाथवे फॉलो करते हैं प्लांट्स, एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे। हम ये प्लांट फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स रोक देती हैं जो कंडक्शन है वाटर का, उसको रोक देती है, क्योंकि सुबेरिन इज इम्परमिएबल टू वाटर and it results in the formation of Casparian strip in dicot root. अब ये सारी की सारी सेल्स बैरल शेप्ड हो जाती है, कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती है। एंड द लास्ट वन इज स्टील। सारा का सारा पार्ट एंडोडर्मिस के अंदर का वो स्टील बनाता है। तो एंडोडर्मिस की जो अंदर की साइड है वो सबसे पहले पेरिसाइकिल प्रेजेंट होगी। इनर जो इनर लेयर है एंडोडर्मिस की, दैट फॉर्म्स अ पेरिसाइकिल। ये फ्यू लेयर्स की होती है, 2-3 लेयर की सेल होती है। पैरेनकाइमेटस होंगी सारी की सारी। एंड सेकेंडरी ग्रोथ में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो लेटरल रूट्स बनेंगी, जो कैम्बियम की फॉर्मेशन होगी सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे, वो यहीं से स्टार्ट होती है। अब जो सेंट्रल पार्ट है, इट रिप्रेजेंट्स पिथ, और उसके अलावा क्या होगा, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होगा, दैट इज नोन एज कंजक्टिव टिश्यू। So conjunctive tissue presents between xylem and phloem. Number is very important. से डाई से टेट्रार्क कंडीशन होती है डाइकोट रूट में, वेस्कुलर बंडल्स की डाई टू टेट्रार्क कंडीशन। और जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो कैम्बियम रिंग डेवलप हो जाएगी डाइकोट में। जबकि मोनोकोट रूट्स में बेसिक डिफरेंस यही है कि यहाँ पे क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है तो जाइलम जो सॉरी पिथ जो है वो लार्ज हो जाएगा, वेल डेवलप्ड हो जाएगा। यहाँ पे वहां पे डाइकोट में क्या कंडीशन थी वेस्कुलर बंडल्स की, 2 to 4, लेकिन यहाँ पे पोलियार मोर देन 6। दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। अदरवाइज यहाँ पे भी एपिडर्मिस सिंगल लेयर, रूट हेयर्स यूनिसेलुलर। उसके बाद मल्टीलेयर्ड कोर्टेक्स, सारी की सारी पेरेनकाइमा सेल्स। उसके बाद स्टील, स्टील एंडोडर्मिस की इनरमोस्ट सेल या लेयर, दैट इज पेरिसाइकिल, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है। उसके बाद जाइलम एंड फ्लोएम, एंड सेंट्रल पार्ट इज ऑक्यूपाइड बाय पिथ व्हिच इज लार्जर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। डिफ्रेंसिएशन प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम का यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ। क्लियर? नाउ डाइकोट स्टेम एपिडर्मिस, कोर्टेक्स एंड स्टील। अब यहाँ पे देखो एपिडर्मिस से जस्ट बाद एक और लेयर यहाँ पे अपीयर हो जाती है विच इज नोन एज हाइपोडर्मिस। तो जो कोर्टेक्स है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। जबकि वहां पे क्या था, एपिडर्मिस, कोर्टेक्स एंड स्टील। यहाँ पे कोर्टेक्स से पहले या कोर्टेक्स की अपर मोस्ट लेयर को हाइपोडर्मिस कह रहे हैं, उसके बाद एंडोडर्मिस है। सो कोर्टेक्स मल्टीलेयर्ड है और 3 रीजन्स में डिवाइड हो जाता है। स्टेम की बात कर रहे हैं तो स्टेम के जो आउटग्रोथ है उसको हम ट्राइकोम कहेंगे। ट्राइकोम एज यूजुअल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स हो जाएंगी, दे कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। और अगर आप अरेंजमेंट देख रहे हो, ट्रांसफर सेक्शन अगर आप देख रहे हो डाइकोट स्टेम का, तो आप देख रहे हो कि जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो अरेंज्ड हैं एक सर्कल में। ये भी स्पेशलिटी है डाइकोट स्टेम की। कोर्टेक्स मैंने बताया 3 रीजन्स में डिवाइड हो गया, कोलेनकाइमा,
parenchyma and starch sheath. Hypodermis just below epidermis, right? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा क्योंकि यंग स्टेज में जो स्टेम है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता. फ्यू लेयर्स ऑफ कोर्टेक्स, यहाँ पे सारी की सारी सेल्स पेरेनकाइमेटस हो जाएंगी. एंड इनरमोस्ट लेयर जिसमें स्टार्च अबंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो बना देगा स्टार्च की शीथ. एंड एंडोडर्मिस के बाद का पूरा रीजन एज यूजुअल स्टील बना देगा. यहाँ पे पेरेनकाइमा से सॉरी पेरिसाइकिल सेल्स क्या है? स्क्लेरेनकाइमेटस. वेस्कुलर बंडल्स रिंग फॉर्म में अटैच्ड है, स्पेशलिटी हो गई. प्रोटोजाइलम अंदर की साइड है तो एंडार्क कंडीशन है. कंजॉइंट है बिकॉज जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑन सेम रेडियस. भाई जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस. तो एक रिंग रैंक अरेंजमेंट होता है. सेकेंडरी ग्रोथ होगी क्योंकि डाइकोट स्टेम है तो कैम्बियम की प्रेजेंस है तो ओपन conjoint and open vascular bundles which are arranged in the form of a ring is a specialty of dicot stem. Central part again क्योंकि secondary growth है तो constricted हो जाता है, small होता है. यहाँ पे large intercellular spaces होंगे parenchymatous cells के बीच. मोनोकोट स्टेम कंपैरेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर है. यहाँ पे आप देखें सिंपल एपिडर्मिस फॉलोड बाय हाइपोडर्मिस. ना कोई कोर्टिकल सेल है ना एंडोडर्मिस है. उसके जस्ट बाद वेस्कुलर बंडल्स है. डिफरेंसेस हैं ये मेन जो है मोनोकोट और डाइकोट स्टेम के बीच में. वहां पे रिंग फॉर्म में अटैच थे वेस्कुलर बंडल्स, यहाँ पे आप देख रहे हो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स हैं. पिथ वहां पे लास्ट था, यहाँ पे पिथ ऑलमोस्ट एब्सेंट है. वहां पे कोई बंडल शीट सेल्स नहीं थी लेकिन यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स हैं दे आर हैविंग बंडल शीट सेल्स. स्क्लेरेनकाइमा की कवरिंग हो जाती है उनके ऊपर. फ्लोएम में यहाँ पे पेरेनकाइमा एब्सेंट होता है, राइट? तो उसकी जगह क्या हो जाती है? कैविटीज प्रेजेंट होती है जो कि वाटर के कंडक्शन में हेल्प करेगा. So these are the major differences between monocot and dicot stem. Now leaf. लीफ आपको पता है दो टाइप की होती हैं, आइसोबाइलेटरल एंड डोर्सिवेंट्रल. आइसोबाइलेटरल जो दोनों साइड से एक हो एंड डोर्सिवेंट्रल. तो डाइकोट प्लांट्स में डोर्सिवेंट्रल लीफ मिलती है. यहां पे आप देखेंगे तो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, एडेक्सियल अपर, अबैक्सियल लोअर एपिडर्मिस. पूरा का पूरा जो रीजन है बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस उसको हम मेसोफिल कहते हैं. अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस दोनों में क्यूटिकल प्रेजेंट है. अब जो नंबर ऑफ स्टोमेटा है ये ध्यान रखने की जरूरत है. जो लोअर सरफेस है वहां पे स्टोमेटा ज्यादा होंगे, ऊपर की साइड में स्टोमेटा या तो होंगे ही नहीं होंगे तो रेयरली प्रेजेंट होते हैं. तो स्टोमेटा हायर इन अबैक्सियल एपिडर्मिस एंड एब्सेंट और नेग्लिजिबल नंबर इन एडेक्सियल एपिडर्मिस. पूरा का पूरा मेसोफिल पेलिसेड पेरेनकाइमा एंड स्पंजी पेरेनकाइमा में हमने डिवाइड कर दिया. यहाँ पे ओवल सेल्स हो जाएंगी, राउंडेड हो जाएंगी, राइट? यहाँ पे इलोंगेटेड सेल्स होंगे इस तरह से. यहाँ पे स्फेरिकल सेल्स होंगे. ये पैरेलल अरेंजमेंट होगा. यहाँ पे स्पेसेस प्रेजेंट होंगे, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे. तो पूरा का पूरा मेसोफिल दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. नाउ द लास्ट पार्ट इज वेस्कुलर सिस्टम इन लीफ. अगर आपको लीफ का डायग्राम ध्यान हो तो लीफ में एक मेन वेन होती है जिसको मिडरिब कहते हैं, मिडरिब और मेन वेन, और यहां से साइड वाइज
वेनलेट्स अराइज होती है। तो मिडरिब एंड वेनलेट्स अब वो वेरी करेंगी, उन थिकनेस वेरी करेगी, ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन में। अब यहाँ पे भी ये थिक वॉल्ड है क्योंकि यहाँ पे भी बंडल शीट सेल्स प्रेजेंट है जो कि फोटो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन एक्सपेंसिव प्रोसेस है क्योंकि एनर्जी का लॉस होता है क्योंकि वहां पे बंडल शीट्स प्रेजेंट नहीं होती। C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन कंट्रोल हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस बंडल शीट सेल्स। दिस इज मोनोकोट और आइसोबाइलेटरल लीफ। यहाँ पे स्टोमेटा दोनों साइड प्रेजेंट होंगे, एपेक्सियल सरफेस में भी, एडेक्सियल सरफेस में भी। कॉमनली इट इज फाउंड इन ग्रासेस। वहां पे स्टोमेटा सिर्फ लोअर सरफेस पे प्रेजेंट थे, यहाँ पे स्टोमेटा दोनों सरफेस में प्रेजेंट है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड बल्लीफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट हियर। सो जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे बल्लीफॉर्म सेल्स तो टर्जिड हो जाती है, तो जो लीफ का सरफेस है वो एक्सपोज हो जाएगा और जब वो वाटर का लॉस हो जाएगा तो वो कर्ल कर जाएंगे टू रिड्यूस द वाटर लॉस। तो जो मोनोकोट लीव्स हैं उनमें पैरेलल वेनेशन होता है, डाइकोट रूट्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, राइट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सेकेंडरी ग्रोथ इन flowering plants. Secondary growth occurs due to formation of vascular and cork cambium. Vascular cambium and core cambium help in secondary growth. Secondary growth help to increase girth or diameter. वो उसको improve करने में help करता है, उसको बढ़ाता है. नो vascular cambium की सबसे पहले कैम्बियल रिंग की फॉर्मेशन हो, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो बाकी पार्ट्स से कट ऑफ हो जाती है, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम वो वेस्कुलर रिंग वेस्कुलर कैम्बियम की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। तो जो वेस्कुलर कैम्बियम है कहाँ प्रेजेंट होगा, जब डाइकोट सेम की अगर हम बात करते हैं तो कैम्बियम रिंग इज प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम के बीच में, तो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बनाऊं, दिस इज प्राइमरी फ्लोएम, दिस इज प्राइमरी जाइलम। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कैम्बियल रिंग इंट्राफेसिकुलर, और जब ये दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में होगी एक कंप्लीट रिंग बन जाएगी, देन इट इज नोन एज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। सो इंट्रा एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, तो इंट्रा बिटवीन प्राइमरी एंड प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। अब और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहां बन रहा है, जो मेड्यूलरी रेज है जो लेटरल कंडक्शन में हेल्प करती है, मेड्यूलरी रेज की सेल्स जो बिल्कुल पास में है फ्लोएम के, वो क्या बना देंगी, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो एक कंप्लीट एक कंटिन्यूअस रिंग बन जाती है जिसको हम कैम्बियल रिंग कहेंगे। अब ये कैम्बियल रिंग क्या करती है, ये दोनों साइड में एक्टिव हो जाती है, तो दोनों साइड में इनर और आउटर साइड दोनों साइड में सेल्स को कट ऑफ कर देती है। तो बाहर की साइड में क्या बनाएगा, टुवर्ड्स एपिडर्मिस और टुवर्ड्स पिथ, पेरिफेरी की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बन जाएगा और अंदर की साइड में पिथ की साइड में सेकेंडरी जाइलम की फॉर्मेशन हो जाएगी। अंदर की साइड में ये ज्यादा एक्टिव हो जाएगा तो सेकेंडरी जाइलम मैसिव हो जाता है, फाइनली इट क्रैशेस सेकेंडरी फ्लोएम एंड प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी जाइलम कैन परसिस्ट, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम को वो क्रश कर देता है। सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम कॉम्पैक्टनेस बढ़ने की वजह से उसको क्रश करता हुआ रिप्लेस कर देता है।
Now secondary xylem, as I told you, primary xylem और primary phloem और secondary phloem को क्रश कर देगा. Primary xylem may remain intact, वो सेंटर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. अब कुछ केसेस में जो कैम्बियम है वो पैरेन्काइमा का एक पैच बना देता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी मेडुलरी रेज की फॉर्मेशन होगी. सो वो कैसे लेटरल कंडक्शन में अगेन जैसे प्राइमरी मेडुलरी रेज करती हैं, वो लेटरल कंडक्शन में हेल्प करेंगे. नाउ वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से दो टाइप की वुड बनती है, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड. जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं एनवायरमेंट की, उसकी वजह से दो टाइप की वुड बन जाती है इन डाइकोट्स ओनली, जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी सिर्फ उन्हीं प्लांट्स में. अब जो कैम्बियम है उसके लिए स्प्रिंग सीजन फेवरेबल है, तो ज्यादा ट्रैकरी एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, ज्यादा वाइडर कैविटीज वो बनाते हैं. तो ऐसी वुड को, क्योंकि ये जल्दी बन रही है, तो इट इज कॉल्ड अर्ली वुड, लाइट इन कलर एंड लेस डेंसर. विंटर में ये कैम्बियम अपनी कम एक्टिविटी शो करेगा, तो नैरो ल्यूमन हो जाएगा, तो इसलिए इसको लेट वुड कहते हैं. तो ये डार्क हो जाएगा. तो लाइट एंड डार्क रीजन्स आर फॉर्म, यहाँ पे हाई डेंसिटी हो जाएगी. तो ये अल्टरनेट सर्कल्स के फॉर्म में, लाइट और डार्क बैंड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर नोन एज एनुअल रिंग्स. तो एनुअल रिंग को काउंट करके हम एज पता कर सकते हैं किसी भी ट्री की. पैलिनोलॉजी, ऐसे ही डेंड्रोक्राइनोलॉजी. जो एक्सपर्ट्स हैं जो एनुअल रिंग्स की स्टडी करते हैं, वुड की स्टडी करते हैं, वो एज फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं, दैट इज स्टडी ऑफ डेंड्रोक्राइनोलॉजी. नाउ हार्टवुड एंड सैपवुड. तो जो हार्ड डेड डार्क ब्राउन कलर के जो वुड है, दैट इज हार्टवुड. इसमें लिग्निन की डिपोजिशन ज्यादा होती है, ये सेंटर में प्रेजेंट होगी, नॉन फंक्शनल होगी, राइट. तो ये जो हार्ड क्यों हुई, ये डार्क क्यों हुई? डार्क कलर हो गया ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जो टेनिन्स हैं, रेजिन्स हैं, ऑयल्स हैं, गम्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं, उन सब की डिपोजिशन की वजह से, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की वजह से इट बिकम्स डार्क कलर. सो सेंटर में प्रेजेंट है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर देगी स्टेम. जो सैपवुड है वो आउटर रीजन में प्रेजेंट है, पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट है, तो लाइट कलर की होगी, वो कंडक्शन में हेल्प करेगी रूट से लीफ तक. सो हार्टवुड एंड सैपवुड, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड. क्लियर? नाउ वेस्कुलर कैम्बियम की हमने बात कर ली, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कोर कैम्बियम की भी उतनी इंपॉर्टेंस होती है. कोर कैम्बियम इज नोन एज फेलोजन. 3 वर्ड याद रखना आप, फेलोजन, फेलोडम एंड फेलम. अभी आपको तीनों का डिफरेंस पता चल जाएगा, फेलम, फेलोजन एंड फेलोडम. तो फेलोजन क्या है? कोर कैम्बियम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं. तो जैसे जैसे स्टेम का डायमीटर बढ़ेगा, स्टेम की गिर्थ बढ़ेगी, तो जो आउटर एपिडर्मल सेल्स हैं, कोर्टिकल सेल्स हैं, वो ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं. तो इनको रिप्लेस करने के लिए दूसरा मेरिस्मेटिक टिश्यू डेवलप हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोर कैम्बियम और फेलोजन. ये भी मल्टीलेयर्ड है, लेकिन यहाँ पे सेल्स थिक वॉल्ड है, रेक्टेंगुलर सेल्स. तो फेलोजन इज कोर कैम्बियम. अब ये कैसे काम करता है? अब ये भी दोनों तरह से ग्रोथ करेगा, जैसे हमारे वेस्कुलर कैम्बियम में हो रही थी. आउटर सेल्स, अब देखिए वो तीनों वर्ड आ जाएंगे. आउटर कोर्क, कोर्क को हम क्या कहते हैं? फेलम. एंड इनर सेकेंडरी कोर्टेक्स, फेलोडम. तो बाहर की तरफ वो कोर्क बना देगा, लेकिन उसकी एक्टिविटी अंदर की तरफ भी होगी, वो सेल्स को वहां पे भी रिप्लेस करेगा, दैट इज नोन एज फेलोडम. और फेलोजन वर्ड हमने किसके लिए यूज किया? कोर कैम्बियम के लिए. तो फेलोजन
फैलम एंड फैलोडम। आई थिंक नाउ तीनों वर्ड कंप्लीट हो गए, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। और ये तीनों स्ट्रक्चर्स मिलके क्या कहलाते हैं? पेरिडम। फैलम दैट इज कॉर्क, उसके बाद फैलोडम दैट इज सेकेंडरी कोर्टेक्स, एंड फैलोजन दैट इज कोर कैम्बियम। एंड इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला के क्या बन गया? पेरिडम, राइट? नाउ व्हाट इज बार्क? एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है, इट इज ए नॉन टेक्निकल टर्म, इट इज ए नॉन टेक्निकल वर्ड। नॉन टेक्निकल का मतलब टर्मिनोलॉजी में हम इसको नॉर्मली यूज नहीं करते। तो पेरिडम प्लस सेकेंडरी फ्लोएम, पेरिडम प्लस सेकेंडरी फ्लोएम मिलके क्या कहलाता है? बार्क। अब इसमें भी अर्ली बार्क या सॉफ्ट बार्क जो पहले बन जाएगा, लेट बार्क या हार्ड बार्क जो बाद में बनता है। जो फेवरेबल सीजन में बनेगा वो अर्ली बार्क, जो अनफेवरेबल सीजन में बनता है वो डार्क बार्क। नाउ सेकेंडरी ग्रोथ रूट्स में भी होती है। स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ की हमने बात की। नाउ इन रूट्स, जिम्नोस्पर्म में कुछ केसेस में सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है, लेकिन मोनोकोट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। तो अगर हम डाइकोट की बात करें तो जो वेस्कुलर कैम्बियम बनेगा वो सेकेंडरी होगा। फ्लोएम बंडल से इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी और वहां पे भी दोबारा से एक वेवी रिंग बन जाएगी, जहां पे जो हमारे वेस्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम है, एक सर्कल में अरेंज हो जाएंगे। उसके बाद बाकी सारे चेंजेस जो होंगे वो सेकेंडरी ग्रोथ जो स्टेम में होती है उसके सिमिलर होते हैं। बेसिक डिफरेंस कहां पे है? इन दिस एरिया कि जो फ्लोएम बंडल्स हैं, जो पेरिसाइकिल के नीचे का जो पार्ट है, उससे प्रोटोजाइलम और प्रोटोफ्लोएम की फॉर्मेशन हो गई, कंप्लीट रिंग बन गई। बाकी सारे चेंजेस एज इट इज होंगे। सो दीज 4 डायग्राम्स आर गिवन इन एनसीईआरटी। अब पहले देखेंगे प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जाइलम और फ्लोएम एक साथ अटैच है, उन दोनों के बीच में कैम्बियम है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। उसके बाद जो डिफरेंट वेस्कुलर बंडल्स हैं वो एक दूसरे साथ अटैच हो जाते हैं, कंप्लीट रिंग बन जाएगी। इट गिव राइज टू इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। देन सेंट्रलाइज पार्ट विथ सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ रहेगा, सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ रहेगा। कोर्टिकल रीजन एंड लेटरल कंडक्शन के लिए मेडुलरी रेज प्रेजेंट। स्टेम की बात बता रहा हूं मैं आपको। सो होप you understood the basics of anatomy in flowering plants. If you have not subscribed the channel, please do subscribe, like and share. We'll continue with this NCERT daily revision series. You can suggest in comment box what topic next or what chapter you want to study next. Thank you.